I would like to congratulate you for your second day practice back to back. Yeah, keep it up. You have plenty to talk about. Bhadas nikalo. Okay. Just, talk about your life. So many different stories. Past tense is the best tense, Actually, if you compare, combine the past and the present simple tense, they make up for nearly 75% of all the sentences you will ever form when you talk in English. Only these two structures are used 75% of the time you speak. If you speak for 100 minutes, 75 minutes, you'll be speaking sentences with the present simple and the past simple, the most common sentences. And that's why we focus on them first. So would like to take a look a little bit at your sentences. Kashi went to Patna and bought a laptop. A laptop. Why not only laptop? Because why not only laptop? Why a laptop? In English language, there are some rules. You can't challenge those rules. A very important rule is if there is a singular countable noun, singular countable noun, you can't use them alone. I bought laptop. Laptop is alone. He's very sad. He doesn't want to be alone. He wants some company. Give him company. I bought a laptop. Compare your sentence number 3 and sentence number 4. I won't ride until I learn a motorcycle. I know what you mean. But in the next sentence you wrote, I didn't ride motorcycle. You need to say a motorcycle. Again, the same rule. Motorcycle is also a singular countable noun. So it doesn't want to be alone. Shlok is here. Pandit Jawaharlal Nehru. Okay. Well, talk about your life. What happened last night? What happened yesterday? What happened in church? What happened in Diwali? Okay. Talk about it a little bit. Not enough. This is not going to make you fluent. Sahil is here? Not yet. My cousin, well, let him come. Then I'll read his. I like reading sentences of the people who are present in the class. Once upon a time, a girl lived. A girl रहती थी. A girl lived. एक लड़की रहती थी in North America. When she was 9, her father and mother sent her to play school. Sent her. Sent. T. Past tense. V2. Bhej diya. Sent her. A verb has 5 forms. V1, V2, V3, V4, and V5. V2 is used for the past time. ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया. We use the V2. The second form of it. उनके मम्मी पापा ने उसे भेज दिया. Her father and mother sent her. Send V1, sent her to a play school in Brazil with her baby sister. Ah, okay, because in 1989 the World War started. Okay, in 1989, 39. I think the World War started in 19. That's why they sent her to play school. When she came to Canada, she saw her parents were not present. भेजा ब्राजील पहुंच गई कनाडा.
Okay, chalo koi nahi. When she came to Canada, she saw her parents were not present in their home. अच्छा वो वापस जब आई फिर when she came back. लेकिन नॉर्थ अमेरिका अच्छा Canada, North America, I understand your point. Their home. So she went to Switzerland to live with her maternal grandmother. She went, वो चली गई. She go, चली गई नहीं. She went, वो चली गई. She went. We too. She went to Switzerland to live with her maternal grandmother. And when she was 23, she started a business. And the business was very successful. You were writing there. All right. Amazing. Very nice. Okay. Good job. All right. And uh, we have here, you have written or your sister has written about Jawaharlal Nehru? Okay. He was born, he married Kamala Nehru at the age of 16. Jawaharlal Nehru is the first Prime Minister of independent India. He died on. चलिए बहुत अच्छा बेटा. सब लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे. लास्ट राजलक्ष्मी, गुड जॉब बेटा. बेटा मुकेश अंबानी is a millionaire. Mukesh Ambani is a millionaire. I think he's a billionaire. No, he's a billionaire. He's not just a millionaire. He's a billionaire. But is important. However, however के पहले full stop होता है दोस्तों. He is a millionaire, billionaire, and then a full stop. तब however मतलब होता है लेकिन उसको सेंटेंस के शुरुआत में बोलते हैं एक सेंटेंस खत्म करके. आपने देखा होगा in that ABC text that I asked you exercise to match. Mukesh Ambani is a billionaire. However, he wasn't always so successful. I think he was. He was always successful. Where was his struggle? He never faced a struggle. I don't know. Okay, my brother was very good at drawing every time. Very good. Hmm. My brother plays from morning till evening until mother scolds him. Until mother, जब तक मम्मी डांटती नहीं है तब तक खेलते रहता है ना बेटा. My brother plays from morning till evening until my mother scolds him. ये जो तुमने लिखा ना until scolded from mother, उसकी जगह क्या लिखना था जो पढ़े हो? Until mother scolds him. इंग्लिश में कैसे होता है? सब्जेक्ट पहले, until mother scolds him. इसमें कुछ नया नहीं है. Mother scolds him. Okay. My brother plays from morning till evening or till evening until my mother scolds him. Okay, वो खेलता रहता है. Okay. I learned to ride a bicycle when I was 13 years old. Very good. My brother did not go to school because he woke up late in the morning. Lovely. I love this kind of sentence. ये है अपने बारे में बात करना. Sachin Tendulkar played cricket when a very young age. Now, when he was very young, when he was very young, only 16 years old. Narendra Modi came to Patna, but had to return immediately to Delhi. Had to return to Delhi. Delhi returning, had to return to Delhi. Had to return to Delhi immediately. Oh, really? Okay. We opened a shop 1 year ago, and today they are running very well. Okay. They कौन बेटा? They कौन? शॉप को दे तो एक शॉप को तो दे नहीं हो सकते. 2-3 shops can be they. One shop is it. एक शॉप इट होता है. आज पूर्णिमा है तो लड़के सारे पूर्णिमा की छुट्टी मना रहे हैं क्या? पाप धोने गए सब क्या? You know? और गुरु नानक जयंती भी आज. India is a country of festivals. People have said this line. India is a country of, if you look at 365 days of the calendar, you will find some festival or other every single day. So if you want, you can have a holiday all year long. Hmm.
Rani, my successful cousin brother. Wow, my cousin Arun Bhaiya is 30 years old, and he is already a very successful army पुलिस आर्मी पुलिस मतलब इतना वो क्या करते हैं तो उसमें पुलिस होता है एन आर्मी मैन इज अ वेरी सक्सेसफुल आर्मी मैन पीपल हु वर्क फॉर द आर्मी और इन द आर्मी दे आर कॉल्ड आर्मी मैन सिंगुलर आर्मी मैन प्लूरल आर्मी मैन ओके he lived in a village in Nevada Chotki Amma Chotki Amma is the name of the village he lived in a village called right beta he lived in a village called Chotki Amma in Nevada. He came to Bihar to study after intermediate exam. When he was child, when he was child, singular, child, countable, yes, अकेले नहीं हो सकता, डरेगा वो, रोने लगेगा, दोस्त तो कंपनी तो, when he was, तो समझ में आ रहा है दोस्तों, आपको सोचना है थोड़ा बहुत वर्ड के बारे में, वो नाउन है, कि एडजेक्टिव है, ये सोचना है, और हिंदी से इंग्लिश तो हो जाएगी अभी आपकी, वहां तक पहुंचा दी हम आपको, क्या कर लो, अब आगे अगला कदम, नाउ करेक्शन इन इंग्लिश. Yesterday, I taught a class at 5:30, and there we talked about nouns, verbs, adjectives, and stuff like that. And for 90 minutes, I just talked about it. It was very useful for many students. देखो शुरुआत में जो हिंदी से इंग्लिश करना पहले आना चाहिए जब आने लग गया कि आपको पता है वर्ड कैसे अरेंज हो रहे हैं ठीक है अब उसमें और एक्यूरेसी लाने के लिए जहाँ हिंदी और इंग्लिश अलग हो जाते हैं एक दूसरे से एक जैसे नहीं रहते तो वी नीड सम रूल्स और वो रूल्स इंग्लिश में समझ में आएंगे इसका लॉजिक देता हूँ क्या अंग्रेजों को हिंदी आती है तो वो किस हिसाब से वो इंग्लिश वर्ड्स अरेंज करते हैं आप तो अपने हिंदी के हिसाब से अरेंज करते हो वो किस हिसाब से अरेंज करते होंगे उनको तो हिंदी नहीं आता यानी कि उनका जो अरेंजमेंट होगा वो हिंदी के हिसाब से होगा ये तो जरूरी क्योंकि उनको तो हिंदी आती ही नहीं है तो हमें भी हिंदी के हिसाब से करना जरूरी नहीं हाँ वो रूल्स क्या फॉलो करते वो जानो रूल नंबर 1 अभी की सिंगुलर काउंटेबल नाउन child singular countable because 2 children 3 children countable so when you have a singular countable noun you will not use them alone और alone बोलने का मतलब है आपको पता है ना एक नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है राइट और दिस दैट आ सकता है माई योर आ सकता है लेकिन एडजेक्टिव की बात नहीं कर रहा अकेले नहीं यूज करने का मतलब है तो उसके पहले उसको कोई कंपनी दो जैसे ये मत बोलो चाइल्ड आई वॉज चाइल्ड नहीं आई वॉज चाइल्ड नहीं क्या बोलना पड़ेगा ए चाइल्ड आई वॉज अ चाइल्ड ठीक है ओके ही स्टोल उसने चुरा लिया ही स्टोल बॉक्स राइट अभी जरूरत के हिसाब से दैट बॉक्स भी बोल सकते हैं ही स्टोल तो दैट आया ना बॉक्स अकेले तो नहीं है तो साथ आया ना माई बॉक्स भी हो सकते हैं जरूरत के हिसाब से ही स्टोल और कुछ नहीं पता बस बक्सा चुराया बाकी नहीं पता कौन सा बक्सा मेरा था तो ही स्टोल ए बॉक्स लेकिन वो खाली तो नहीं रहेगा अकेले तो नहीं रहेगा डज इट मेक सेंस समझ में आ रही बात ओके माई सिस्टर इज सिंगर माई सिस्टर इज गलत इंग्लिश में माई सिस्टर इज a singer because singer is a countable noun and it is singular plural is singers right so maybe I would like to give you the same lesson that I gave in the 5:30 class okay that guys what does a noun mean noun का मतलब क्या हो इस दुनिया में जितनी चीजें दिख रही हैं तुम्हें वो सब क्या है और जो चीजें नहीं दिख रही हैं वो क्या है नाउन ये मजेदार था सोचो जरा जो चीजें दिख रही वो सब क्या है और जो नहीं दिख रही वो क्या है वो भी नाउन है यानी जितनी चीजें हैं सब क्या है क्या वो दिखे नाउन चीजें नाउन
जितनी जगह है सारी जगह क्या है, जगहों के नाम मतलब, ठीक है, तो वो नाउन। इंसान, इंसानों के नाम, जैसे मैं टीचर हूँ, तो टीचर एक आदमी होता है ना, तो टीचर भी क्या है, एक नाउन। तो नाउन मतलब तीन चीजें, या तो आदमी, या तो जगह, या तो चीज। अब चीज बोलने पे चेयर तक तो समझ समझ आराम से बनती है कि चेयर एक चीज है, फैन भी समझ में आता है, सीलिंग भी समझ में आता है, एक चीज है, नाउन होगा सीलिंग। वो बल्ब, वॉल, कर्टेन, ओके, रॉड, स्विच, वायर, प्लग, ओके, ऑल दीज थिंग्स आर नाउन, ये तो समझ में आता है। लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूँ पेन, तो लोगों को लगता है ये तो एडजेक्टिव होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं वो। सुनते के साथ उनको क्या, उनके बचपन में पढ़ने पढ़ाने का अंदाज ऐसा था कि उनको कई बार नाउन को वो एडजेक्टिव समझते हैं। क्यों ऐसा है, बताता हूँ। क्योंकि वो एडजेक्टिव वर्ड का फील नहीं है उनके पास, मैं बताऊं। एडजेक्टिव कोई वर्ड होता है, चीज नहीं होता पहले। एडजेक्टिव सिर्फ शब्द है, वो चीज नहीं। ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या है, सिर्फ शब्द हैं, दे आर ओनली वर्ड्स। वो रियल वर्ल्ड में कोई चीज नहीं होते हैं। ओके, या वी डोंट नीड द फैन ना, nobody needs the fan, the sun is not out, we are feeling kind of okay, not if not cold, we are definitely not feeling hot. When are you guys going to start wearing a sweater? Waiting for others? That's a big joke. The sweaters are out, but waiting for others to start wearing so that you don't look silly. When you go out wearing a sweater and nobody else is wearing a sweater, you feel so silly. Imagine somebody comes to the class. Actually, last year, some people did that. One or two guys came. They were the only people wearing sweaters, nobody else. We made fun. We did make fun of them. Okay. So, adjectives are just words. मैंने कहा खूबसूरत, तो किधर है, कोई चीज है दुनिया में, उसको बता सकते कि वो चीज कैसा है। तो खूबसूरत कोई चीज नहीं है दुनिया में, ठीक है, वो चीजों के बारे में बताने वाला एक वर्ड है। लेकिन खूबसूरती, जरा सा देखना, हल्का सा फर्क हुआ है, खूबसूरत और, तो कुछ लोगों को ये फर्क नहीं समझ में आता दोनों वर्ड्स के बीच में। उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, अपने गांव परिवार घर परिवार मोहल्ले में हिंदी सुनते बोलते बड़े हो गए, उनको नहीं फर्क पता चलता है खूबसूरत और खूबसूरती। पढ़ाई के तरीके से फर्क नहीं पता चलता, वो शब्द यूज करते हैं सही से। कहाँ जहां खूबसूरत बोलना चाहिए वहां खूबसूरत बोलेंगे, और जहां खूबसूरती बोलना चाहिए दे विल यूज खूबसूरती। लेकिन एक लर्नर को जो क्लास में बैठा है, सिर्फ यूज करने से आगे भी समझ होनी चाहिए, ताकि वो इंग्लिश भाषा में उस समझ को यूज कर सके। तो देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन खूबसूरत एंड खूबसूरती। सुनने में एक जैसे, बिल्कुल भी एक जैसे नहीं। मतलब जहां खूबसूरत है, हटा करके वहां खूबसूरती रख दे, एकदम गलत सेंटेंस। मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत है, हटा दो खूबसूरत, लिख दो मेरी वाइफ बहुत खूबसूरती है, खत्म कहानी। राइट, जहां लिखना है खूबसूरती, उसकी आंखों की खूबसूरती में मैं खो गया, ओके, अब वहां खूबसूरती की जगह खूबसूरत लगा दो, उसकी आंखों के खूबसूरत में मैं खो गया, व्हाट नॉनसेंस। ओके, तो खूबसूरत एक एडजेक्टिव है, वो डिस्क्राइब करने के काम आता है। सिर्फ डिस्क्राइब करेगा कोई चीज कैसा है, चीज होना चाहिए पहले कोई, फिर उसके बारे में वो ऐड कर देगा कि वो कैसा, भाई तो खूबसूरत है। जैसे तुम्हारी हैंडराइटिंग, चीज है हैंडराइटिंग, ठीक है, और वो हैंडराइटिंग कैसी है, खूबसूरत है। तुम्हारी आंखें चीज हैं, कैसी हैं, खूबसूरत हैं। तुम्हारी स्माइल एक चीज है, तुम्हारी है तो चीज है ना, तुम्हारी है मेरी कोई भी चीज ही होगी ना। तुम्हारी स्माइल, तो स्माइल क्या है, एक नाउन है ना, पहले समझो, स्माइल एक नाउन है। जैसे तुम्हारी माँ, माँ भी एक नाउन है। तुम्हारा स्कूल, स्कूल भी एक नाउन है। तुम्हारे टीचर, टीचर भी एक नाउन है। तो तुम्हारे भाई, तो भाई भी एक नाउन ही है। तो तुम्हारे के बाद कुछ भी बोलोगे वो क्या होगा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी स्माइल, स्माइल क्या है, नाउन। अब बोले तुम्हारी नाउन खूबसूरत, तुम्हारी स्माइल खूबसूरत है, तो स्माइल के बारे में कुछ ऐड किया ना हमने, बताया ना कि कैसी है भाई। ऑलराइट, तो
कोई भी नाउन के बारे में एक शब्द जो उसके बारे में कुछ बता दे, उस शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। तो और जो नाउन्स होते हैं वो एक्चुअल में चीजें होती हैं, चाहे वो दिखे चाहे ना दिखे, चीजें होती हैं। जैसे खूबसूरती फंसाने वाली चीज होती है, फंसा सकती है, ऐसी चीज है ये। तो चीज है ना, तभी तो फंसाएगी। तो चीज जो भी है वो क्या है? नाउन। तो खूबसूरती एक चीज है, तो खूबसूरती क्या है अपने आप में? नाउन। अब उसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? खूबसूरत तो ब्यूटीफुल, खूबसूरती क्या? ब्यूटी। ब्यूटी, हाँ वो भी एक तरीका होता है जो आपने सोचा, ठीक है। और बताते हैं, ईमानदार, ऑनेस्ट, ठीक है, क्या है नाउन की एडजेक्टिव? ऑनेस्ट। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बस ऐसे पूछिए कि इसको किस लिए यूज करते हैं, कोई चीज है या किसी चीज के बारे में बताने के लिए करते हैं? हाँ, जैसे बोलते हैं एक ईमानदार व्यक्ति, तो व्यक्ति है नाउन, और कैसा है? तो ईमानदार इज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन, डिस्क्राइब समथिंग। तो ईमानदार, लेकिन ईमानदार क्यों है वो? उसके अंदर कोई चीज है जिसकी वजह से वो ईमानदार है, और वो चीज का नाम क्या है? ईमानदारी जो है वो अपने आप में क्या है? नाउन है। तो मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूं, मैं तुम्हें एक जॉब देना चाहता हूं अपनी कंपनी में, ऐसे कोई बात कर रहा है, तो मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित हूं। आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर ऑनेस्ट, नहीं ऑनेस्टी है ना, बिल्कुल, आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर, ओके। तो गाइस, ये ऑनेस्ट और ऑनेस्टी वाला जो मामला है ना, कई लड़के तुम्हारे क्लास से बाहर बैठे हो, तुम भी कुछ देर में परेशान हो जाओगे, हो सकता है कुछ जगहों पे ये फर्क नहीं समझते ऑनेस्ट और ऑनेस्टी का, उनके दिमाग में हिंदी में भी फर्क नहीं है इसके बीच में। तो ये जो ऑनेस्टी है ये तो एडजेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि ऑनेस्टी खुद अपने आप में एक चीज है, अच्छी चीज है ऑनेस्टी, अच्छी हो या बुरी हो, दिखने वाली हो या ना दिखने वाली हो, सुनने वाली हो या ना सुनने वाली, खाने वाली हो या ना खाने वाली, बट चीज होनी चाहिए। चीज है तो फिर, जैसे मैंने कहा प्रभाव, प्रभाव, ओके, असर, ठीक है। जब मैं बोलूंगा असर, प्रभाव, तो कई लोग बोल देंगे फटाक से एडजेक्टिव बिना समझे मुझे, उनको फीलिंग आता है कि एडजेक्टिव बोलना है। पता है जिस तरह से उनको पढ़ाया गया ना एडजेक्टिव बचपन में, वो खराब तरीका था पढ़ाने का। इस वजह से प्रभाव सुनते के साथ या असर सुनते के साथ मन में क्या आ जाता है फट से? एडजेक्टिव। सोचना, क्या तुम असर वर्ड को यूज कर सकते हो किसी को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो असर है, वो चीज असर है? जब तक ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते वो एडजेक्टिव नहीं है। कोई चीज अगर एडजेक्टिव है तो उसको इस फॉर्मूले पे फिट कर दो, वो ऐसा है, ठीक है। अब बोलते हैं असरकारी, असर, प्रभावशाली, ठीक है। तो असरकारी, प्रभावशाली, हो सकता है आपने ये वर्ड्स यूज ना किए हो बातचीत में, कोई बात नहीं। तो सुनना, दो वर्ड्स बताता हूं, इफेक्ट, इफेक्टिव, इफेक्ट। अब इस कोर्स को बताना है तुम्हें, दिस कोर्स इज, दिस कोर्स इज, इसका मतलब इस कोर्स से आपके ऊपर इफेक्ट होता है, आपके इंग्लिश पे इफेक्ट होता है, पड़ता है। अगर एक दवा है तो दवा को डिस्क्राइब करना है, द मेडिसिन इज इफेक्टिव। मुझे आजकल बहुत नींद आती है, आई थिंक इट इज द डॉट 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 ऑफ द मेडिसिन, राइट। आई स्लीप अ लॉट दीज डेज, मुझे लगता है, आई थिंक इट इज द, ये इफेक्ट क्या है? चीज है, ठीक है। मुझे बहुत नींद आती है, कौन सी वजह है, क्या है वजह? ये इट इज द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। तो इफेक्ट अपने आप में क्या है? चीज। और तो गौर करो, द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, ओके, द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। तो ऑफ, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन का असर है, मेडिसिन का। तो धीरे 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 समझेंगे, जैसा नहीं कि आज मैंने बोल दिया तो ये क्लियर हो गया, आज के बाद आप महान पंडित हो गए ग्रामर के, ऐसा कुछ नहीं होता है एक दिन में। बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे, समझ बड़ी होती है धीरे धीरे, रिश्ता गहरा होता है धीरे धीरे। ऑलराइट, रिमेंबर दीज थिंग्स, यस। अगर 2 दिन में बहुत ज्यादा प्यार हुआ है ना, तो अगले 2 दिन में
बहुत ज्यादा तकरार भी हो सकता है दोस्त, केस भी जा सकते हैं पुलिस के पास। सो गो स्लो, गो स्लो, गो स्लो। इफ यू वांट टू मेक अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, गो स्लो। या हाँ, if you don't care about it, हाँ, one night stand. Okay, sorry, talking about nonsense, but yeah. But again, you don't care, then only. If you think that I want to spend my life with this person, go slow. Okay. Anyways, मैं टीचर से फट से बन गया रिलेशनशिप एक्सपर्ट, है ना? 1 सेकंड लगा मुझे, 1 सेकंड, या 1 सेकंड भी नहीं लगा। ओके, इफेक्ट एंड, तो आगे देखते हैं। हेट और हेट्रेड में क्या फर्क है, तुम्हें सोचना है। सोचो पहले, हेट एंड हेट्रेड। सुनने में एक जैसे वर्ड्स लगते हैं, हेट हेट्रेड, राइट, है ना? गरीब और गरीबी सुनने में एक जैसे वर्ड्स लगते हैं हिंदी में भी, गरीब एंड गरीबी, लेकिन फर्क है दोनों में। हाँ, जैसे इफेक्ट और इफेक्टिव में फर्क है, वैसे ही गरीब और गरीबी में भी फर्क है, और वो फर्क महसूस करना है। ठीक है, चलिए पहले आते हैं हेट और हेट्रेड पे। तो आप हेट बोलना जानते हो? बोलो पहला लाइन, सबसे कॉमन लाइन, आई हेट यू। फिल्मों से जान के आपको लड़की एक बार तो कम से कम ये बोलेगी जरूर, ठीक है, चाहे शादी हो चाहे ना हो। आई हेट यू। इट्स सो लवली टू हियर दिस फ्रॉम अ गर्ल। कितना अच्छा लगता है जब लड़की बोलती है आपको आई हेट यू। प्लीज कंटिन्यू। ओके, ये आपका क्या जवाब होना चाहिए? प्लीज कंटिन्यू। ओके, बोलेगी व्हाट, कंटिन्यू टॉकिंग। ऑलराइट। ओके, हेट वर्ब है ना? मैं आपसे कोई काम करता हूँ, आई हेट यू, ये हेट क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट आई के बाद क्या आएगा हमेशा? वर्ब। इंग्लिश में पैटर्न बंधे हुए हैं, इंग्लिश के सेंटेंस बोलना है तो वर्ब ऐसे नहीं लिया करना मेरे बच्चे, ऐसे डायरेक्ट अकेला वर्ब नहीं लेना। वर्ब लेना तो उसके पहले क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे तुमने कहा ना, आफ्टर स्कोल्डेड बाय मदर, वो चूंकि पहले एक चीज सही नहीं हुआ और दूसरा चीज पढ़ा दिया स्कूल में, पैसिव वॉइस। आज तक हम लोगों ने पैसिव वॉइस की बात की है ना? करेंगे, और जब करेंगे तो ऐसा करेंगे कि धूम धड़ाका से करेंगे, बिकॉज आप लोगों को सबको महसूस होगा कि अच्छा ये है पैसिव वॉइस, मुझे ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा उस दिन। ओके, बट आई एम टेकिंग यू देयर स्लोली। ओके, तो बेटा आप बोलना चाहती थी डांट सुनने के बाद, तो डांट सुनने के बाद आप बोलना चाहती, तो ये तो आपको पता चलना चाहिए कोई तो डांटेगा। मम्मी डांटेगी, मम्मी को लगा दो डांटने के पहले, क्योंकि इंग्लिश में हमेशा डूअर जो होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब के कहाँ होता है? पहले होता है। तो मदर स्कोल्ड, ये वाला अरेंजमेंट होना चाहिए, मदर स्कोल्ड। और स्कोल्ड का कौन सा फॉर्म यूज करना है, ये तुम्हें पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया गया है और पढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे, कि अलग अलग फॉर्म्स अलग अलग बातों के लिए, लेकिन मदर और स्कोल्ड ये सीक्वेंस तो हमेशा रहना ही है। माँ डांटती है तो माँ पहले फिर स्कोल्ड। अनटिल मदर स्कोल्ड्स हिम, अनटिल, जब तक मम्मी डांटे नहीं, मम्मी से डांट नहीं खाए, अनटिल मदर स्कोल्ड्स हिम। ओके, तो मैं आपको बता रहा था हेट, आई हेट यू, शी हेट्स मी। ऑलराइट, तो वर्ब है ये। तो जब कोई हेट करता है तो उसके दिल में कौन सी चीज होती है? मैं तो चीज ही बताऊंगा नाम नाम के बारे में। उसके दिल में कौन सी चीज होती है? कौन सी चीज होती है हिंदी में? नफरत, फिर बोला हम लोगों ने, ठीक है। और वही नफरत बोला था पहले भी, नफरत, लेकिन उसमें खाली करना जोड़ दिया था। ठीक है, नफरत करना। इसीलिए हिंदी और इंग्लिश कभी कभी परेशान करता है, क्योंकि आपको एक ही वर्ड सुनने को मिल रहा है, नफरत, नफरत करना, राइट? तो समझ नहीं आ रहा। नफरत करना वर्ब, काम करना, है ना, एक काम है ये नफरत करना। आई हेट यू, शी हेट्स मी, लाइक। लेकिन मेरे दिल में आपके लिए नफरत नहीं है। ओके, मेरे दिल में आपके लिए, अब ये बात मैं दोनों ही तरह से बोल सकता हूं। आई डोंट हेट यू एंड आई हैव नो hatred in my heart for you. I have no hatred for you in my heart. I have no hatred. तो I have no hate बोल सकते हैं क्या? I have no hate, I have no hatred for you. तो ऐसे धीरे धीरे समझेंगे। और देखते हैं,
गरीब और गरीबी, है ना। तो पता है गरीब लोग, इंग्लिश आपको पता है क्या बोलोगे? पुअर पीपल। गरीबी बहुत खराब चीज है, इंसान के चेहरे, शरीर, सोच सबको खराब कर देती है गरीबी। ओके। और गरीबी मतलब ये नहीं होता पैसे, बड़ा महल नहीं होना दोस्तों, उसको गरीब नहीं कहते प्लीज। गरीब जिसको कहते हैं उसको समझना, जब तुम अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हो तो तुम, बाकी अपने आप को गरीब मत समझो अगर जरूरतें पूरी हो रही हैं तो। ख्वाहिशात तो कई लोगों के पूरे नहीं होते, बादशाहों के भी ख्वाहिशात पूरे नहीं होते, तो क्या गरीब है वो? Alright? So please remember, you're not poor because your desires are incomplete or unfinished. Okay? Desires do not decide whether you are poor or rich, whether your needs are being fulfilled or not. आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, आप गरीब नहीं हैं। ऑलराइट, आप खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, किसी का कर्ज नहीं लेके रखे हैं, तो आप गरीब नहीं हैं। मे बी यू आर लिविंग इन अ वन रूम हाउस, ओके, लेकिन अगर वो वन रूम हाउस में एक ही परिवार है, दो हस्बैंड वाइफ है, तो फिर गरीब हैं, क्योंकि दे नीड अ सेपरेट रूम, ईच कपल नीड्स अ सेपरेट रूम फॉर प्रिवेसी सेक, राइट। बट देन देयर तो कोई कंडीशनल है कि कोई गरीब है कि नहीं। ऐसे नहीं कि भाई हर आदमी अपने आप को गरीब बोलता है। इंडिया में एक बड़ी खराबी है, मिडिल क्लास के लोग अपने आप को क्या बोलते रहते हैं? गरीब हैं, हम गरीब हैं। क्या बकवास है, सेल्फ स्टीम नहीं है तुम्हारी? आई एम नॉट रिच बट आई एम नॉट पुअर। ओके। मुझे पता नहीं क्यों लोग अपने आप को गरीब बोलना अच्छा महसूस करते हैं। एक होता है मॉडेस्ट रहना, अपने आप को अमीर नहीं दिखाना, इट्स ऑल राइट, बट व्हाई डू यू कॉल योरसेल्फ पुअर? अ लॉट ऑफ पीपल, वुड यू एग्री और नॉट? you know absolutely illogically they call themselves poor। बाइक है तेरे पास फिर भी तू पुअर है, घर है अपना फिर भी तू पुअर है, ठीक है, हर महीने 1000-2000 रुपए बचा भी रहा है बैंक अकाउंट में, फिर भी तू पुअर है भाई। पुअर इज somebody who can't pay their bills, poor is somebody who can't fulfill their needs, they are only poor। okay, और पुअर पीपल की गिनती में अपने आप को रख करके आप पुअर लोग का हक मार लेते हो, वेरी बैड। ओके, कमिंग बैक टू दिस, गरीबी खराब चीज है, तो क्या बोलेंगे? पुअर से हमें एक वर्ड लाना पड़ेगा, पुअर से ही रिलेटेड होगा वो, क्योंकि पुअर एक एडजेक्टिव डिस्क्राइब करने के लिए है, राइट। माई पुअर टीचर वर्क्स वेरी हार्ड। ओके, तो आपके टीचर कैसे हैं? पुअर हैं, लेकिन वो मेहनत करते हैं। तो नाउन का काम, एडजेक्टिव का काम क्या है? बस एक ही काम है एडजेक्टिव का। क्या काम है? सुबह शाम प्रार्थना करना, बस एक चीज करना उनका काम है, नाउन को डिस्क्राइब करना। दे जस्ट डिस्क्राइब नाउन्स, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स, बस उनका ही काम है। अब वो डिस्क्राइब करने के लिए वो अपने आप को दो जगह रख सकते हैं सेंटेंस में। एक नाउन के जस्ट पहले, माई काइंड सिस्टर, माई माई क्वारलसम सिस्टर। अभी मैंने एक बार काइंड बोला, एक बार क्वारलसम बोला, जो भी वर्ड बोला वो मेरी सिस्टर के बारे में कुछ तो बताया ना, इसलिए वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव्स नाउन के जस्ट पहले आ सकते हैं, माई काइंड सिस्टर, माई क्वारलसम सिस्टर, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, माई सिस्टर इज काइंड, माई सिस्टर इज क्वारलसम। तो बस दो ही तरीके से एडजेक्टिव यूज होते हैं, यानी कभी भी मैं आपको कुछ सिखाऊं और सिखाने से पहले बोल दूं ये एडजेक्टिव है, तो आपको इतना जरूर पता चल गया कि वो यूज कैसे होगा। बस दो तरीके से होगा, वर्ड का यूज आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। क्या सुनते के साथ कि वो एडजेक्टिव है, या तो किसी नाउन के जस्ट पहले लिखा रहेगा, या तो उस नाउन के बाद बी वर्ब, फिर उसके बाद वो, ठीक है। ही गेव मी ए बिग सरप्राइज। ओके, तो ये यहां पर एडजेक्टिव है ना, बताओ कौन है एडजेक्टिव? बिग। और वो कहाँ है? नाउन के पहले। हाँ, नाउन क्या है जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है? सरप्राइज, ठीक है। द सरप्राइज वॉज बिग, तो ये भी एक तरीका है। ही गेव मी अ सरप्राइज, इट वॉज वेरी बिग, द सरप्राइज वॉज वेरी बिग। तो यही दो तरीके से, कोई भी एडजेक्टिव इंग्लिश में, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो सिर्फ दो तरीके से यूज होंगे, ऐसे, या तो नाउन के पहले, जस्ट पहले,
या तो वो नाउन के बाद एक वर्ब आएगा जो उसको एडजेक्टिव के साथ लिंक कर देगा। जैसे आप बोलना चाहते हैं माई फादर इज काइंड, तो माई फादर और काइंड को लिंक किया ना, कौन सा वर्ड लिंक किया? माई फादर इज काइंड। माई इंटरेस्टिंग क्लास, माई, तो आपने अपने क्लास के बारे में कुछ बोला कि नहीं एक्स्ट्रा? अगर आप ड्रॉप कर दोगे तो वो बात खाली नहीं बोली, बात तो बोली, वो वाली बात नहीं बोली जो उससे आ रहा था, माई क्लास। ओके, इंटरेस्टिंग हट गया उसमें से। तो एडजेक्टिव ना लगाने से सेंटेंस राइट रॉन्ग नहीं होता, बस वो बात आपने नहीं बताई जो नाउन के बारे में बताना था। आई हैव ए ब्यूटिफुल सिस्टर, ठीक है, अब मैंने ब्यूटिफुल ड्रॉप कर दिया, आई हैव अ सिस्टर, बस उस सिस्टर के बारे में एक्स्ट्रा नहीं बताया आपको, ठीक है। आई हैव ए यंगर सिस्टर, ठीक है, मैंने यंगर को हटा दिया, आई हैव अ सिस्टर, तो आपको जानकारी कम दी सिस्टर के बारे में, और सिस्टर के बारे में थोड़ी और जानकारी देना था, मैंने लगा दिया आई हैव अ यंगर सिस्टर, तो आपको पता चल गया कि इनकी बहन और वो बहन इनसे, तो उस बहन के बारे में मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दे दी। तो एडजेक्टिव का काम है नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना, वो कैसा है ये बता देना, है ना? समझ में आ रही बात है? एडजेक्टिव का काम सिर्फ लिमिटेड है, सिर्फ दो जगह, बताइए कौन कौन सी जगह? जिस भी नाउन के बारे में है आएगा कि वो कैसा बताने के लिए, उसके पहले, और दूसरा ऑप्शन नाउन के बाद कोई बी वर्ब लगा के, या कभी कभी कुछ और भी लिंक वर्ब होते हैं, सीख जाएंगे, उसके बाद वो लिख देते हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे के बारे में हो, ठीक है। जैसे बोला माई स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो इज लगाया ना लिंक करने के लिए, माई स्कूल स्ट्रिक्ट नहीं बोल सकते, माई स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट स्कूल, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, स्ट्रिक्ट माई स्ट्रिक्ट टीचर, ओके, ये सेंटेंस है क्या? फुल स्टॉप दे दूं? माई स्ट्रिक्ट टीचर फुल स्टॉप? नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ माई टीचर ही बोला है, खाली उसके बारे में एक बात बता दी, माई स्ट्रिक्ट टीचर, आगे अभी जो बताना है बताओ, ये तो एक सब्जेक्ट हो गया। माई स्ट्रिक्ट टीचर पनिशेज अस व्हेन वी गो एब्सेंट, माई स्ट्रिक्ट टीचर पनिशेज अस व्हेन वी गो एब्सेंट। तो आप जब नाउन बोले तो आप उसके पहले कोई एडजेक्टिव लगा करके इंग्लिश में आप उसके बारे में एक्स्ट्रा दे सकते हैं जानकारी। My strict teacher punishes us when we don't do our homework. Okay, fine. अगर आप यही चाहे, my teacher punishes us when we don't do our homework. He is strict, right? Very strict. तो ये बोलचाल में ज्यादा नॉर्मल है ना, एडजेक्टिव को बाद में यूज करना बी वर्ब के साथ, और लिखने में लंबे लंबे सेंटेंस बनाते समय नाउन के पहले एडजेक्टिव को बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। बस यही दो तरीके हैं एडजेक्टिव को यूज करने के। तो जब भी मैं बोल दूं आपको कि ये वर्ड एडजेक्टिव है, तो हिंदी चाहे कैसे भी अरेंज होती है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पता है वो वर्ड कैसे सेंटेंस में आएगा। नशे में हो जी, नशे में हो, नहीं ना? ओके, इंग्लिश में बोलते आर यू हाई, हाई मतलब नशे में हो, ठीक है, हाई मतलब, ओके ठीक है, तो बता बेटा, हाई मतलब नशे में, ओके। तो हाई, मैं तुम्हें इसके पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बता देता हूँ, हाई क्या है, एक एडजेक्टिव है, हाई क्या है एक, अब तुम इसको सेंटेंस में बोलो कि मेरा पड़ोसी नशे में रहता है दिन भर, ठीक है, मेरा पड़ोसी नशे में रहता है दिन भर, तो तुम्हें पहले दो तीन वर्ड तो एकदम आसानी से पता होने चाहिए, बोलो क्या? माई नेबर, इन हाई नहीं बोलोगे, क्या बोलना है? देखो फंसाया, फंसाया, तुम्हें पहले बताया था कि हाई क्या है, तो तुम किसी एडजेक्टिव को ऐसे बोलते हो, ही इज इन टॉल, ही इज इन रिच, तुम्हें पता है अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती है, फिर भी तुम फंसे। मैंने बताया हाई क्या है एक, तो एडजेक्टिव है, सुनते के साथ तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, माई नेबर इज हाई, या उसको हाई को नेबर से पहले, यही दो ऑप्शन था ना, राइट? यही दो ऑप्शन था ना, तुमने इन हाई कैसे सोचा? सोचा कैसे? क्योंकि हिंदी ने डुबाया तुमको, मैंने थोड़ा सा हल्का सा पलीता लगाया, तुम जल पड़े, ठीक है, भवक गए एकदम, फूट गए, हट गए, ओके। हिंदी गाइड नहीं कर सकती तुम्हें, मैं अभी खूब ऐसे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा, थोड़ा और समय दो, ठीक है, ताकि तुम और ऐसा
उलझो और सुलझो फिर उसके बाद, पहले उलझेंगे फिर सुलझेंगे। यस। तो मेरा मेरा पड़ोसी हमेशा दिन भर नशे में रहता है। माई नेबर इज ऑलवेज हाई, ऑल डे लॉन्ग ही इज हाई। ही इज हाई तक तो पहुंच गया ना, माई नेबर इज हाई, वहां तक तो पहुंच गया एडजेक्टिव होने की वजह से, वहां तक तो कोई टेंशन नहीं था। उसके बाद आगे जितना बढ़ना है धीरे धीरे, आप जितना दिन मेरे साथ रहोगे सीखते ही रहोगे कुछ ना कुछ ऐड करना। ऑल डे लॉन्ग, ये कहीं भी सारा दिन बोलने के लिए ऑल डे लॉन्ग बोलते रहेंगे। हम तुमको दिन भर याद करते हैं यार, तुम रात में खाली मैसेज करती हो। ओके, वहां भी लगा दोगे क्या, हम तुमको दिन भर याद करते हैं। आई मिस यू, आई थिंक अबाउट यू ऑल डे लॉन्ग, आई स्टडी इंग्लिश ऑल डे लॉन्ग, आई स्लीप ऑल डे लॉन्ग। नहीं, अगर ऑल डे लॉन्ग मतलब दिन भर सोते हैं, किसी को बोला तू दिन भर सोता है, यू स्लीप ऑल डे लॉन्ग एंड यू हैव बिग ड्रीम्स दैट यू विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर। ठीक है। ओके। तो क्या समझे, कुछ समझ में आया है क्या? पार्ट ऑफ स्पीच जान करके, ये जान के कि अंग्रेज क्या सोचते हैं, उनको हिंदी नहीं पता है दोस्तों। दे डोंट इवन नो हिंदी, कि तुम क्या बोलते हो, कैसे अरेंज करेंगे तुम्हारे हिसाब से। तो जैसे ही तुम्हें मैंने कहा रे नशे में ना इन हाई ना, तुम लोग फंस गए। हाँ हाँ, इन हाई इन हाई, ये भूल गए कि हाई क्या है। और इन हाई बोलना तभी पॉसिबल हो पाता जब हाई क्या होता, क्योंकि इन के बाद सिर्फ नाउन ही आ सकता, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद सिर्फ और सिर्फ, इंग्लिश में प्रीपोजिशन के बाद सिर्फ नाउन ही आते हैं और कुछ आ ही नहीं सकता। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। अभी जो जानकारी दी, ये सारी जानकारी रिकॉर्ड हो ही रही है, दिमाग में रखना और बाद में रिकॉर्डिंग को भी सेव करके रखना, देखते रहना जब मन आए तब, क्योंकि ये गाइड करेगी तुम्हें। मैं बताता हूँ, तुम्हें बोलना है लीव मी अलोन, बोल दिया तुमने, सुना ही होगा। मुझे बताओ ये लीव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या लगा? लीव मी अलोन। चलो ठीक है, हेल्प कर देता हूँ थोड़ा सा। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लीव मी अलोन, दोनों एक जैसे सेंटेंस है। बोले कैसे एक जैसा है, कुछ भी नहीं है, दोनों एकदम एक जैसे हैं। एक में कहा पानी ला दो और एक में कहा, ठीक है। तो ब्रिंग क्या था, है ना, तो लीव भी क्या है, ठीक है। आगे सुनना, ही इज ऑन लीव, ही इज ऑन लीव। अब बताओ लीव का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। क्यों? ऑन क्या है, एक प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ सकता है? ओके, ही इज ऑन लीव। ओके, एनी प्रॉब्लम्स? तो बस आपको सेंटेंस को, अरेंजमेंट को गौर करना है, वर्ड्स के अरेंजमेंट को गौर करना है, उनकी हिंदी पर सोचना भी नहीं, ज्यादा ज्यादा नहीं सोचना है, पहले पहले पार्ट ऑफ स्पीच देखना है। तो हम लोग थोड़ा नाउन समझें, थोड़ा एडजेक्टिव भी समझें। एडजेक्टिव के दो यूसेस हैं, या तो नाउन के पहले आएगा, या तो नाउन के बाद एक लिंक वर्ब आएगा। या तो जैसे मैं बोलूं यू लुक हैंडसम, तो यहां पर आर नहीं यूज किया मैंने, लेकिन फिर भी एक लिंक करने के लिए वर्ड किया है यूज। यू लुक हैंडसम मतलब तुम अच्छे दिखते हो, यानी तुम ही दिखते हो अच्छे, यानी यू ही है ना हैंडसम। तो हैंडसम एडजेक्टिव है और यू सब्जेक्ट था जिसको डिस्क्राइब किया मैंने। बोलेंगे सर यू तो नाउन नहीं है। देखो जितने प्रोनाउंस होते हैं वो सब नाउन के एकदम बराबर है, जो नाउन कर सकता है वो, ठीक है, नाउन आते ही प्रोनाउन के जगह पे। क्लियर है ना? इसलिए टेंशन नहीं लेने का। यू लुक हैंडसम, ओके। अब सुनो, यू स्मेल सो गुड, यू स्मेल सो गुड, बगल में आप बैठे किसी के और आपने उसको कहा यू स्मेल सो गुड, ओके। तो आप यहां सोचिए, गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, और स्मेल यहां लिंक करने के लिए है। आप नाक से नहीं, उसको नहीं बोले कि तुम नाक से अच्छा सूंघते हो, आप कह रहे हो तुम अच्छे महक रहे हो, यानी तुम अच्छा महक रहे हो, यू स्मेल गुड। तो स्मेल, लुक, ये सब लिंक करने के लिए आते हैं यू को और गुड को, ठीक है। दिस फूड स्मेल्स सो बैड, दिस फूड स्मेल्स सो बैड, डोंट ईट इट। बैड आपने किसको बताया? फूड को ना।
फूड एक नाउन है, बैड आपने बताया, डिस्क्राइब किया उसको, बैड है, तो बैड एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव बस दो ही तरह से यूज होंगे। क्या दिमाग में घुस चुका है कि कोई भी वर्ड मैं आपको सिखा दूं एडजेक्टिव बोल करके, तो आप क्या करोगे? आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि कोई नाउन होगा, और या तो उसके पहले आ जाएगा वो, या तो नाउन के बाद कोई लिंक वर्ब होगा, ज्यादातर में इज, बी वर्ब, इज एम आर, वाज वर्ब फर्स्ट टेंस में, और उसके बाद वो एडजेक्टिव। बस ऐसे ही होता है। चलो मैं आपको बताता हूं कि एक एडजेक्टिव देता हूं जो आपने नहीं सुना होगा, tumultuous। ठीक है, tumultuous, बस इतना बोल दिया कि एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं ये बताऊं कि tumultuous जो है ना, ये सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ठीक है, सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। तो आप नहीं बोलना आई एम tumultuous, बात समझ आ रही है? क्योंकि मैंने क्या बताया, सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत वाइड है, बहुत बड़ी वोकैबुलरी इंग्लिश में, इतने वर्ड्स हैं कि मत पूछो। ठीक, तो तुम जब भी अब कुछ पढ़ोगे तो ये ट्रिक जो मैंने अभी बता दी है, ये अप्लाई करते रहना कि अगर इस तरह से अरेंज हुआ है ये वर्ड, तो ये पक्का एडजेक्टिव होगा। एक नाउन के पहले लिखा है तो ये पक्का एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव है तो उसका काम क्या है? डिस्क्राइब करना। यानी कोई एक शब्द है वो जो किसी को डिस्क्राइब करने का काम आता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। ठीक है, तो Bangladesh is going through a tumultuous time. Bangladesh is going through a tumultuous time. अब तुम्हें समझ में आ गया tumultuous किसको डिस्क्राइब करने के लिए है? स्थिति को। तो समय भी तो एक स्थिति को बताता है, समय। तो बांग्लादेश इज गोइंग थ्रू ए tumultuous टाइम, इसका मतलब पूरा कभी ऐसे कभी ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, नॉट वेरी रिलैक्स्ड, है ना, tumultuous। तो आपको नहीं पता है एडजेक्टिव, अभी भी आपको ज्यादा नहीं पता है, लेकिन आप कभी ये बोलोगे आई tumultuous, बांग्लादेश टुमल्टुअस? नहीं बोलेंगे, मुंह से निकलेगा नहीं ऐसा, क्योंकि आपके ध्यान में क्या बैठा, वो एडजेक्टिव है, वो डिस्क्राइब करने के लिए आएगा किसी को। आप भले गलत चीज को डिस्क्राइब कर दें, ठीक है, आप बोल रहे टुमल्टुअस सिटी बोल दें, ऐसा हो सकता है, ठीक है, वो नेचुरल ना लगे किसी को सुनने में, लेकिन आप ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, आप सिर्फ समय के साथ मैच्योर होते जाएंगे। इस दुनिया में एक 20 साल का लड़का, एक 40 साल का आदमी, दोनों में फर्क होता है समझदारी में, हाँ कि ना? तो क्या वो 20 साल के बाद वो कोई कॉलेज जाता है उस समझदारी लाने के लिए? वो दुनिया को जीता है तो उससे समझदारी आती है। तो आप जैसे इंग्लिश के साथ रहोगे, आपकी इंग्लिश की समझ बेहतर होती जाएगी। लेकिन ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अगर आप नहीं जानोगे, वो समझदारी नहीं आएगी जो आप बेहतर करने की उम्मीद करते हो। हम आपको यहाँ से छोड़ देंगे एक आध साल, 1.5 साल के, 2 साल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा। अगर आप ज्यादा ही बिताओगे मेरे साथ तो 3 साल बिता दोगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको जाने दूंगा। तो क्या 3 साल के बाद आपकी इंग्लिश ग्रो नहीं करेगी? वो जो मैंने बताया होता है ना, उसको फाउंडेशन बना के आपकी इंग्लिश ग्रो करती जाती है। मेरी एक स्टूडेंट मिलने आई, परू की स्टूडेंट है, उनका नाम नोएलिया है। तो शी वॉज माई स्टूडेंट लास्ट ईयर, आई थिंक इन 2022। शी वॉज माई स्टूडेंट इन 2022, यस, 22 में मेरी स्टूडेंट थी। और उसके बाद उनको उनके 4 लोग थे, मम्मी पापा और भाई बहन, ठीक। तो चारों चले गए हैं कनाडा। तो वो वापस क्लास में जुड़े हैं ग्रामर वगैरह इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, वो स्पेनिश से गए वहाँ, तो दे वांट टू कंटिन्यू। तो पापा ने उनके कहा कि इनको भी पढ़ाइए अभी आप। तो हम टीचिंग देम, और जब वापस आई हैं तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रही हैं जब गई थी उसके तुलना में। ठीक है, इंप्रूवमेंट है काफी। क्यों? क्योंकि वो कनाडा में रह रही हैं, उनकी माँ उतना नहीं सीख पाई, उनकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही, परेशानी ज्यादा हो रही है, क्योंकि वो फाउंडेशन नहीं था। ठीक है, तो अभी वो जैसे जैसे बड़ी होती जाएंगी, 10 साल और रह लेंगे, वो मेरे की जरूरत ही नहीं उनको, शी विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ओके, तो पॉइंट ये है कि हम आपका यहाँ पर वो क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट अबाउट इंग्लिश, कि जिसके दम पे आप नई चीजें आसानी से सीख लें बिना किसी से कुछ पूछे उछे, बस सुनते जाइए, सीखते जाइए। आपने सुना कहीं पर किसी से, ओके, सच ही इज सच अ ट्रेचरस पर्सन, ही इज अ ट्रेचरस पर्सन, ओके, ही इज अ ट्रेचरस पर्सन। अब आप ट्रेचरस के बारे में एक चीज निश्चिंत होकर बताइए क्या, और ये काम क्या करेगा? किसी को डिस्क्राइब करेगा कि कैसा है। ठीक है, तो आप बता दीजिए, वो किसी को बोल दीजिए माय फ्रेंड इज ट्रेचरस, माय टीचर इज ट्रेचरस, ऐसा करते रहिए। अलग बात है आपको पता नहीं मीनिंग क्या है, लेकिन आप बोले जा रहे हैं सबको, सब सेंटेंस सही है, क्योंकि एडजेक्टिव है तो आप यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि वहां पर्सन लिखा था, ही इज सच अ ट्रेचरस पर्सन, तो आप बोलिए माय टीचर इज ट्रेचरस। ओके, लेकिन उसका मीनिंग आपको अभी नहीं पता चला है। अगर कॉन्टेक्स्ट में ध्यान देते रहिएगा, बार बार 3-4 बार आ गया सामने, तो मीनिंग भी निकल के आ जाएगा बिना डिक्शनरी देखे।
Someone who will cheat you is treacherous. Someone who will pretend to be your friend and suddenly they will do something, a stab in the back, they are treacherous. Okay. Wasn't me. A treacherous friend is a good friend, right? You all want a treacherous friend, right? Okay. Once you find out about somebody that he is a treacherous person, will you stay close to that person? No. Now, let me ask you. अगर तुमने कहीं किसी जगह पढ़ लिया treacherous waters of XYZ river या sea, treacherous waters, तो आप क्या कहोगे? वो पानी धोखा देने वाला है, पीछे से कर देगा. treacherous waters मतलब क्या हुआ? हो गया ना कि अगर आप वहां हैं उस पानी में तो कभी भी अचानक से, जैसे वो treacherous फ्रेंड अचानक से धोखा दे देगा वो पानी में, तो आप अचानक से कुछ भी हो सकता है, बाढ़ आ जाए अचानक से, हो सकता है बहुत बड़ा ज्वार भाटा आ जाए, कुछ भी हो जा सकता है. तो treacherous waters हो गया ना. माय दो फ्रेंड्स, ऐसे करके आप एक्सटेंशन करते जाएंगे अपने मीनिंग की. आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग काम करेगा. मैं ये चीज बहुत अरमान लगा के बैठा हूं कि लोग अपना दिमाग लगाएं इंग्लिश में सीखने के लिए, टीचर से सुन के याद करके ना जाएं. तो एडजेक्टिव्स दो ही तरह से यूज होंगे, और आप जैसे ही सुनेंगे एडजेक्टिव आपको पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव है. नाउन्स पे आते हैं. नाउन्स को सिर्फ दो जगह यूज करना है. ये क्या बात, नाउन्स को सिर्फ, हाँ जी, सिर्फ दो जगह यूज करना है. Ram killed Ravan. Okay. Ram is the subject. Ravan is the object. तो let me tell you. Subject, object, ये हमेशा क्या होते हैं? Nouns होते हैं. हमेशा क्या होते हैं? Nouns ही हो सकते हैं subject. अब मैंने बोला a boy loves a girl. मैंने कल यही सारी चीजें पढ़ाई, अचानक से आ गया दिमाग में उन लोग के साथ बात में. अभी आपकी क्लास में तो पढ़ा रहा हूँ कल पढ़ाने के बाद, बट yesterday when I taught them the 5:30 class, it was all spontaneous. कुछ बातें आई उसके बाद चलती निकलती चली गई. तो a boy loves a girl आ गया नाउन. नाउन a boy subject object, a boy loves a girl. अब उस बॉय में आपको डालना है एडजेक्टिव, डाल के कुछ एडवांस बना ये कर दे, एक्स्ट्रा जानकारी दे दो. ए लिटिल बॉय कर दिया. लव्स ए बिग गर्ल, ओके कर दिया. कोई टेंशन, कुछ भी डाल दे. ए हैंडसम बॉय लव्स ए प्रिटी गर्ल. तो इंग्लिश में नाउन्स दो जगह यूज होते हैं. कहाँ कहाँ? अरे ये कैसे पता चलता है? वर्ब से पता चलता है. और एक चीज और पता चला गया, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है? वो नाउन भी ऑब्जेक्ट ही माना जाता है हमेशा, समझिए. और इसको हम ऐसे बोल रहे हैं, तो टेक्निकल बोलेंगे तो इसको केस बोलते हैं, कि एक नाउन दो केसेस में होता है, या तो सब्जेक्टिव केस या तो ऑब्जेक्टिव केस. तो जब मैंने कहा ऑन लीव, ओके ही इज ऑन लीव, तो ये बताइए लीव कौन से केस में है? क्या ये नाउन है? पहले ये डिसाइड होगा. ऑन लीव, ही इज ऑन लीव, तो लीव क्या है? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद है तो नाउन ही होगा. ठीक है. देखो मैं जितने अच्छे से बता रहा हूं, आप में से कई लोग आंखें बड़ी हुई हुई हैं, मजा आ रहा है सुनने में, दिमाग लगा रहे. दो बच्चे सोए, दो बच्चों को पता नहीं चला. पता है ना क्यों? क्योंकि ये बातें कभी बच्चों के समझ में नहीं आएंगी, और ये बच्चों को देना ये सब, इट्स लाइक आपका दिमाग पैदल है तो आप बच्चों को कोशिश भी करोगे सिखाने की. इन बच्चों को बैठा करके हम लोग ह्यूमन रिलेशनशिप समझाएं? नहीं ना. एक टाइम आएगा वो समझेंगे, और अगर आपके सामने वो बात करी जाए ह्यूमन रिलेशनशिप, तो आप इंटरेस्ट लेंगे ना. मेच्योरिटी. तो ग्रामर सीखने के लिए एक सर्टेन एज का होना बहुत जरूरी है. इसलिए अडल्ट स्टूडेंट्स के क्लासेस अलग टाइप से होते हैं. दीज चिल्ड्रन लर्न हियर मेनली बिकॉज ऑफ द वे आई टॉक टू यू. ओके, बाकी ग्रामर का इन पे ज्यादा असर नहीं हो सकता. नहीं तो आपकी आयत ने वहां पर V1 क्यों लिखा हुआ था सब जगह? समझ रहे हो ना. और मैंने बताते समय कोई टेंशन लिया? बस खाली बोल दिया एक बार. मुझे पता है फिर भी गलतियां होने वाली है भाई. इट विल टेक हर अ कपल ऑफ इयर्स टू गेट इट राइट. ओके, ये मुझे पता है, लेकिन कई लोगों को, ना गार्जियन को पता, ना टीचर्स को, बच्चे को पनिश करते रहते हैं. V2 छोड़ दिया, V2 गलत लिखा, तो उसकी उम्र ही नहीं है अभी सही करने की. लेट हर बी 11, 12 एंड देन सी हाउ शी विल स्टार्ट टू फॉलो दीज थिंग्स बेटर ऑल ऑफ अ सडन. ओके, थिंग्स विल चेंज. ग्रामर, ये सारी चीजें
ट्रेनिंग का हिस्सा है, लेकिन कोई ट्रेनिंग करके तो टीचर बना नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग सही में ट्रेनिंग करके टीचर बने हो तो आप कभी बच्चों को टॉर्चर नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है किस एज में बच्चे को क्या सीखना है। आप फालतू चीज पहले घुसा करके उसको परेशान नहीं करोगे। समझ में आता है सिलेबस कैसे डिजाइन होता है बच्चों का? बिकॉज यू हैव टू नो चाइल्ड साइकोलॉजी, कौन से एज में, कितने एज में कौन सी क्षमता बच्चों को डेवलप हो जाती है। आप 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को बोलो सर्कल और ट्राइंगल को अलग करने के लिए, नहीं कर पाएगा। भाई 3-4 साल का बच्चा है ना, वो सर्कल अलग कर देगा और ट्राइंगल अलग कर देगा। कहेगा तो तुम कहना उनको कि ऐसे करो, तो इनको शॉर्ट करो, तो 1-2 तुम करके दिखाना, उसके बाद वो फट 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 करने लगेगा 4 साल का बच्चा। वही 2.5 साल का बच्चा शायद ना कर पाए, जब तक कि बहुत एक्सेप्शनली टैलेंटेड इंटेलिजेंट ना हो। देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। तो हम लोग ऐसे प्ले स्कूल बच्चों को भेजते हैं ये सब सिखाने के लिए, लेकिन कौन से टीचर्स प्ले स्कूल के ट्रेन टीचर से बताना जरा। और बीएड करा भी है तो कैसे बीएड करते हैं पता है ना तुम्हें? बस सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं पैसा दे के, 1,60,000 रुपए। आपको चाहिए तो मुझे बताना। ओके, बैक डेट में भी आ जाएगा। ओके। तो मैं दोनों ही तरफ से खेलता हूँ, खराब भी बोलता हूँ और पैसे भी कमाने का चांसेस नहीं छोड़ता। हाँ, वैसे ही। चलो, ओके, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग। तो नाउन्स ये है। नाउन्स दो ही जगह आएंगे, या तो वर्ब के पहले, वर्ब के बाद, और एक प्रीपोजिशन के, प्रीपोजिशन के बाद। अच्छा, प्रीपोजिशन के पहले आ भी सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे जरा सुनना ये वाला, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। तो क्या अफ्रेड को नाउन कहोगे? नहीं ना। आई एम अफ्रेड, तुम अपने आप को बता रहे हो। आई एम अफ्रेड, अफ्रेड एक एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है तुम्हें। आई एम अफ्रेड, याद करो यही तो था। एडजेक्टिव्स इतने ही तरीके से तो यूज ही होते हैं। बी वर्ब के साथ जोड़ दो, आई एम अफ्रेड, ठीक है, ऑफ डॉग्स। तो ऑफ है ना वहां पे प्रीपोजिशन, उसके बाद डॉग्स है। तो ये सही नहीं कि प्रीपोजिशन के पहले नाउन हो, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद हर हाल में नाउन होगा। अच्छा, और सुनो, द पेजेस ऑफ दिस बुक। द पेजेस, यहां पर तुम्हें 2 नाउन मिले, कौन से? पेजेस, बुक। द पेजेस ऑफ दिस बुक हिंदी में क्या बोलेंगे? इस किताब के पन्ने। द पेजेस ऑफ दिस बुक, द पेजेस ऑफ दिस बुक आर हाई क्वालिटी। द पेजेस ऑफ दिस बुक आर। अब मुझे बताइए, यहां पर नाउन कोई और दिखा आपको? एडजेक्टिव दिखा कुछ? बताइए, हाई क्वालिटी में क्या दिखा? कौन? पेज एडजेक्टिव है। हाँ, तो पूरे 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 सेंटेंस को एनालाइज करते हैं ना। द पेजेस ऑफ दिस बुक आर हाई क्वालिटी। चलो देखते हैं, करते हैं। पेजेस नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है ही हमें, ऑफ द पेजेस ऑफ दिस बुक। अब दिस बुक में थोड़ा सा सोचते हैं, बुक तो नाउन है, दिस क्या है? हाँ, क्योंकि नाउन के पहले क्या आ सकता है? बस। तो दिस भी एडजेक्टिव है, अलग तरह का एडजेक्टिव है। कैसा बताने के लिए नहीं है, ऐसे करके बताने के लिए। इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं अगर ग्रामर पढ़ेंगे तो। लेकिन एडजेक्टिव है, ये तो समझ में आ सकता है बेसिक वजह से। क्या? नाउन के पहले एडजेक्टिव, उसके बारे में लिखा जा सकता है, एडजेक्टिव आके उसके बारे में कुछ बता सकता है। दिस बुक, विच बुक? दिस बुक। तो दिस कुछ तो बताया बुक के बारे में ना, तो फिर वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। द पेजेस ऑफ दिस बुक आर, या इज, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं ना। द पेजेस आर हाई क्वालिटी। अब इसमें आते हैं, हाई क्वालिटी पे आते हैं। बोलो, कहाँ हाई एडजेक्टिव है, क्वालिटी? बस वही फॉर्मूला है अपना। अब कुछ दिमाग मत लगाओ, जो बोला है उसको एक्सेप्ट कर लो। हाई अगर एडजेक्टिव है तो क्वालिटी क्या है? हाँ, भले ही तुम्हारा दिमाग नहीं मानेगा, क्योंकि बचपन से मैं थोड़ी था तुम्हारे साथ। तुम्हारा दिमाग तो उल्टा पुल्टा सोचेगा, बचपन से कोई और पढ़ाया तुमको, वो भी तो असर करेगा। तुम अभी सोच रहे हो क्वालिटी तो एडजेक्टिव है ना, बोलो कि नहीं सोच रहे थे तुम लोग? मैं कैसे जानता हूं कि तुम सोच रहे थे? क्योंकि बचपन में जो पढ़ाया गया वैसे सोचने से क्वालिटी एडजेक्टिव फील होता है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसके हिसाब से क्या फील हुआ? क्योंकि हाई एडजेक्टिव है तो हाई के बाद क्या आया, तो भैया बात खत्म है, और मेरा ही मेथड काम करेगा, ही सही होगा।
क्वालिटी इज अ नाउन, ठीक है, क्वालिटी इज अ नाउन, ओके। सो द पेजेस ऑफ दिस बुक आर हाई क्वालिटी। लंबा सेंटेंस बन गया। तो दो वर्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से जान गए हम लोग। नाउन्स दो ही तरीके से यूज होते हैं, ओके, और एडजेक्टिव्स दो ही तरीके से यूज होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होंगे? अब जब ऐसा बोल रहे तो आपका दिमाग काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर अगर हम लोग बोलते हैं आई लाइक सिंगिंग, तो नाउन किधर है सर, ऑब्जेक्ट किधर है सर? ऑब्जेक्ट हो गया सर सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग, ये नाउन तो नहीं है सर। हाँ नाउन है। कैसे पता है नाउन नहीं है? सुनो गौर से, एक वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो होता है वो नाउन के जैसा ही होता है। जब किसी के पापा नहीं रहे तो बड़े भैया पापा के जैसा ही रोल निभाते हैं, ठीक है? तो वैसे ही जब नाउन नहीं है तो V4 नाउन के जगह पे बिल्कुल काम करता है। तो आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक कुकिंग, कुकिंग क्या है? आईएनजी फॉर्म है, वो नाउन के जैसा है, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड। और सुनना, आई एम अफ्रेड ऑफ फेलिंग द एग्जाम, आई एम अफ्रेड ऑफ, ये फेलिंग आया। तुम तो बोले थे ऑफ के बाद नाउन होगा, कैसा पढ़ाए थे सर आप? तो है तो नाउन ही तो है, नाउन के बराबर है। आई एम अफ्रेड ऑफ, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है हमेशा? नाउन नहीं है तो वर्ब कैसा रहेगा? आईएनजी, क्योंकि वही तो होता है नाउन के बराबर। आसान है। हालांकि मैं जो बोल रहा हूं उसमें आगे भी और कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि धंसते जाए फिर आगे देते जाएंगे, ठीक है जानकारी, ओके। चलिए बढ़ते हैं। वर्ब समझते हैं? वर्ब हमेशा कहाँ आता है? वो जो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के बाद आता है। अच्छा एक बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को जब तोड़ेंगे तो उसके हिस्से होंगे, और वो हिस्से कितने होते हैं? तो 2-3 हिस्सों को हमें ज्यादा जानना है। एक हिस्सा होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद सारी चीजों को कहते हैं प्रेडिकेट। बस दो ही हिस्से होते हैं सेंटेंस के, क्या क्या? एक होता है सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट के बाद जो भी है वो सब क्या है? प्रेडिकेट है। तो एक सेंटेंस के दो ही हिस्से होते हैं, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स कितने तरह के होते हैं? 8, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें से हम नाउन को जानते हैं दोस्तों, अच्छे से जानते हैं। अब प्रोनाउन को भी जानते हैं, जो नाउन के बदले आ गया वो, नाउन को कहा तू जा आराम कर हम हैं, वो प्रोनाउन। वर्ब, ठीक है, वर्ब के बारे में और बात करेंगे। एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन भी समझते हैं। एडवर्ब के बारे में बात करेंगे, हालांकि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस तो आप लोग थोड़ा महसूस करते ही है, फिर और बात करेंगे, ओके। ये अजीब क्लास है कि जिसमें एडवर्ब की बात नहीं हुई है, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम की बात हो गई है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हो गई है, ठीक है। ये अजीब क्लास है। ये इसलिए अजीब है कि हाँ हम लोग बैठ करके किताब कॉपी पे अच्छा इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधे चले गए हैं कहाँ? वहां जहां पर कार और ये बाइक फिक्स हो रही हैं, और सारे हिस्से खोल के ये वाला हिस्सा ऐसे बन रहा है, ये वाला हिस्सा ऐसे बन रहा है, दिमाग लगा रहे हैं प्रैक्टिकली। तो इस वजह से हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम आपको पहले ही बता दिए क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम, आपको पता है ना। अगर मैंने कह दिया यस्टरडे तो क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। आई गेट अप एट 8 o'clock, तो एट 8 o'clock क्या है? राइट। अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस, आई सॉ यू इन द स्कूल यस्टरडे, तो इन द स्कूल क्या है? वेयर, वेयर पूछ लिया, आपको पता चल गया। ये बात मैं अफोर्ड कर सकता हूं पढ़ाना, क्योंकि मैंने आपको शुरू से ही सिखाने के लिए पढ़ाया, ठीक। फर्स्ट डे से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिखाऊं लैंग्वेज, तो इसलिए अफोर्ड कर सकता है। कोई टीचर जाकर पढ़ा दे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब की बात ना करे, वो पहले एडवर्ब पढ़ाएगा, फिर एडवर्ब के काइंड्स पढ़ाएगा। मैंने एडवर्ब नहीं पढ़ाया, सीधे कह दिया एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि वो कनेक्ट होता है दिमाग से। कहाँ? एडवर्ब ऑफ प्लेस। कब? तो एडवर्ब ऑफ टाइम। बस इतना बोलना था। आएंगे बाप, प्रीपोजिशन समझते हो? तो एक वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश के, वो अलग अलग जाति के होते हैं। जैसे शादी में अगर पंडित भाग गया तो उसके जगह दूसरा पंडित आएगा। क्या आएगा? दूसरा। शादी से अगर नाई भाग गया तो दूसरा नाई आएगा। दूसरा साहू जी नहीं लेके आ जाएंगे, दूसरा पंडित नहीं लेके आ जाएंगे, क्या लाएंगे?
ना ही लेके आएंगे। पॉइंट ये है कि अगर एक इंग्लिश सेंटेंस से अरेंजमेंट है, मैं जाति वाति में नहीं किन करता, समझा रहा हूँ सिर्फ, वहां थोड़ी सी दोनों ने शुरू कर दिया है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ कि ना मेरे बारे में जजमेंट मत दो, फायदा नहीं है, तो मुझे समझ नहीं पाओगे, सीरियसली नहीं समझ पाओगे। तो एक सेंटेंस के जो वर्ड्स होते हैं ना, उसमें से जो वर्ड हटेगा, तो उस जिस जाति का वर्ड है ना, उसी जाति का वर्ड आएगा। अगर कोई सेंटेंस रखा मैंने, ए हैंडसम बॉय वेंट ऑन हॉलिडे अलोन, ओके, ए हैंडसम बॉय वेंट ऑन हॉलिडे अलोन। हम हैंडसम हटाएंगे तो वहां पर हर हाल में क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव ही लगाएंगे, हैंडसम एडजेक्टिव है। ए रिच बॉय, अगर वहां पे लगाना है दूसरा वर्ड, तो जैसे वो हैंडसम कैटेगरी क्या है उसका एडजेक्टिव, तो एक एडजेक्टिव ही लगा सकते हैं। बॉय हटाया, बॉय क्या है दोस्तों, नाउन, तो दूसरा नाउन ही लगाना है। ए हैंडसम बिजनेसमैन, नाउन ही है। ए हैंडसम टीचर, ठीक है। तो जो जाति का वर्ड हटता है सेंटेंस से, अगर आपको उसको रिप्लेस करना है वहां पे, बिना सेंटेंस के अरेंजमेंट को चेंज किए, तो हर हाल में आपको उसी जाति का वर्ड रखना होगा वहां। यू कैन नॉट चेंज द जाति ऑफ द वर्ड, फिर स्ट्रक्चर बदलेगा फिर। जैसे आप शादी में एक पंडित भागा तो पंडित लाते हैं, अब मौका ही दूसरा हो गया है, वो शादी अब है ही नहीं, तो कोई भी आएगा वहां पर, बात समझ में आ रही है। तो पॉइंट मेरा ये कि सेंटेंस में जो अरेंजमेंट होता है, उसमें वर्ड्स के जाति को गौर करा करिए, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इस पे ध्यान दिया कीजिए आप। टर्न ऑन द लाइट्स प्लीज, ताकि आगे और बात बताऊं तो है। यस, यस, द स्विच अबव इज दैट, यस, या थैंक यू। ओके, व्हाट एल्स वाज आई टॉकिंग अबाउट, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि सेंटेंस के दो ही हिस्से होते हैं, कोई भी इंग्लिश सेंटेंस है उसके दो हिस्से होंगे, कौन कौन से, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। अब ये क्या होता है, अंग्रेजों को हिंदी तो आती नहीं है, तो वो जानते हैं कि हम लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट हो जाता है, या तो किसी आदमी के, या तो किसी चीज के, या तो किसी जगह के बारे में बात होगी। और इसीलिए सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, क्योंकि जब आप बात करोगे किसी के बारे में, तो या तो कोई आदमी होगा, या तो कोई जगह होगी, या तो कोई चीज होगी, और ये तीनों ही चीजों को क्या कहते हैं। तो क्या घूम के बात आ गई कि नाउन क्यों नाउन होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन ही क्यों होता है, क्योंकि आप, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में आप बात करें, और जिसके बारे में बात करेंगे, या तो वो कोई आदमी होगा, या तो कोई जगह होगी, या तो कोई चीज होगी, और दुनिया में है ही नहीं इसके अलावा कुछ, ठीक है। तो इनको नाउन्स कहते हैं, और नाउन ही हो सकता है सब्जेक्ट। तो पहले आपका हो गया एक सब्जेक्ट, और उस जिसके बारे में बात करें उसके बारे में कुछ बोला जाएगा ना, जो भी बोला गया वो सारा का सारा क्या होता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, एक्चुअली प्रेडिकेट मतलब होता है बोलना, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलना। बात समझ आ रही है। तो आपने कोई सेंटेंस लिया, रिच पीपल हैव अ लॉट ऑफ प्राइड, किसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, रिच पीपल। बोलेंगे सर तो आप तो बोले थे नाउन, तो ये रिच क्यों, एडजेक्टिव का अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अपने आप में एग्जिस्टेंस नहीं है एडजेक्टिव का, वो सिर्फ और सिर्फ जगह पाते हैं सेंटेंस में, किस लिए, नाउन के बारे में कुछ बताने के लिए, ठीक है। तो हमने जो नाउन चुना है, जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, वो लोग है, और कौन से लोग, रिच पीपल। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रिच पीपल, और रिच पीपल दोनों मिल के क्या समझा जाएगा, अक्सर रिच ना एडजेक्टिव है, पीपल नाउन है, लेकिन जब वो दोनों साथ में तो क्या है, नाउन ही है। नहीं, ये पॉइंट मेरा कि वो एडजेक्टिव और नाउन साथ में, अब क्या है, नाउन ही है वो। एग्जिस्टेंस नहीं होता एडजेक्टिव का अपने आप में कुछ, ठीक है। वो आएगा नाउन के साथ, और नाउन में ही खो के रह जाएगा, वो गिना जाएगा कुल मिलाकर के एक नाउन, दोनों को मिलाकर के एक नाउन ही बोलना है। रिच पीपल क्या है, नाउन। हाँ, रिच अपने आप में एडजेक्टिव, इसलिए तो वर्ड आया पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए। रिच पीपल हैव अ लॉट ऑफ प्राइड, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स कर दो, तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ, रिच पीपल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके। चलो, तो ये रिच पीपल के बारे में मैंने कुछ बोला ना, कुछ तो बोला, तो जो भी बोला वो है प्रेडिकेट। क्या बोला मैंने, हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, रिच पीपल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इंग्लिश के सेंटेंसेस जो होते हैं, उसमें दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट का हिस्सा, एक
प्रेडिकेट का हिस्सा। बात समझ में आ गई? अब बात आती है प्रेडिकेट में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, वहां पर गौर करना। प्रेडिकेट का पहला वर्ड अक्सर एक वर्ब होता है। प्रेडिकेट का पहला वर्ड क्या होता है? माई स्कूल teaches high quality of education, gives high quality of education. My school gives, तो हमारा हो गया सब्जेक्ट क्या? माई स्कूल, और उसके बाद प्रेडिकेट क्या है? गिव्स हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो बताइए कि हाँ वर्ब है कि नहीं पहला वर्ड गिव्स। और सुनिएगा, माई फादर हैज बॉट अ न्यू कार। ठीक है, सब्जेक्ट बताओ, प्रेडिकेट बताओ, हैज बॉट अ न्यू कार। ठीक है, तो आपने जितने सेंटेंसेस लिखे हैं अपने ग्रुप में आज, कल भी लिखे थे, सब में एक सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट के बाद जितनी बातें लिखी हैं उस सेंटेंस में, उस सब्जेक्ट के बारे में जितनी बातें लिखी हैं वो सब क्या है? प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट का पहला वर्ड क्या होता है? राइट। अब वो टेंस के हिसाब से वो वर्ब अलग अलग दिख सकता है। जैसे मैंने कहा माई फादर हैज बॉट अ न्यू कार, माई फादर हो गया सब्जेक्ट, हैज बॉट अ न्यू कार, इसमें पहला जो है प्रेडिकेट का पहला हिस्सा हैज बॉट, हैज बॉट। ठीक है, नाउ सुनना जरा से गौर से। तो ये हैज बॉट जो है, ये वर्ब का डिसीजन टेंस के हिसाब से लेते हम लोग पढ़ेंगे टेंस, जैसे अभी पढ़े, दो टेंस पढ़े ना, प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल। तो और भी ऐसे ऐसे पढ़ते जाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है। वर्ड ऑर्डर पे ध्यान देना। मैंने कहा माई फादर वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू कार। ठीक है, माई फादर वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू कार। तो मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में दो हिस्से करो, पहले सब्जेक्ट वर्ब और पूरा प्रेडिकेट बोलो। wants to buy a new car, wants to buy a new car। तो इसमें ना तुम्हें want भी वर्ब दिख रहा है और buy भी वर्ब दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब आते हैं वर्ब के बारे में बात करते हैं कि वर्ब भी दो तरह के, चला दो पीछा नहीं छोड़ रहा है ना। ये वर्ब भी दो तरह के होते हैं। एक वर्ब जो होता है वो जो होता है पहला वर्ड प्रेडिकेट का, प्रेडिकेट का। ठीक है दोस्तों, पहला। अब सुनना, जो दूसरा वर्ड होगा जो टू बाय है, वो वर्ब तो है लेकिन वो सेंटेंस का वर्ब नहीं है, प्रेडिकेट का फर्स्ट वर्ब नहीं है, उसको कहते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। टू बाय जो है उसको क्या कहते हैं? नॉन फिनाइट वर्ब। उसका मतलब होता है कि उसके रूप में कोई चेंज कभी नहीं करना है। जैसे मैंने कहा माई फादर वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू कार, तो हम पास्ट में बोलेंगे तो बोलेंगे माई फादर वॉन्टेड, फिर भी टू बाय ही रहेगा, वो नहीं बदला, क्योंकि वो नॉन फिनाइट। नॉन फिनाइट वर्ब्स में कोई चेंजेस उनके फॉर्म नहीं होते, वो जैसे हैं वैसे हैं। दो ही नॉन फिनाइट वर्ब्स मेनली आपको यूज करने को मिलता है, टू बाय एंड बाइंग। मैं आपको दिखाता हूं अगला, ठीक है, सुनना। नॉन फिनाइट वर्ब वो होता है जो वर्ब तो दिखता है आपको, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली उसमें वो सेंटेंस के बाद नहीं होता, वो बहुत बाद में होता है, वर्ब के भी बाद। जैसे मैंने बोला आई एंजॉय लर्निंग इंग्लिश, आई एंजॉय लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट, वर्ब हमारा एंजॉय, ये सेंटेंस का वर्ब है। अगर पास्ट में बोलना चाहेंगे तो एंजॉय को चेंज करेंगे हम, आई एंजॉयड, लेकिन लर्निंग चेंज नहीं होना, वो वैसा ही रहना है। ठीक है, तो हम लोग के क्लास में हम लोग उसको पढ़ते हैं वर्ब पैटर्न करके। वांट टू बाय, तो कल के दिन में बोले बेचना चाहते हैं तो वांट टू सेल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सेलिंग नहीं बोला ना, क्योंकि वो पैटर्न गौर कर लिया तुमने। मैंने कहा आई एंजॉय लर्निंग इंग्लिश, सीखना मुझे बहुत मजा आता है इंग्लिश सीखने में, मुझे बोलना पढ़ाने में मजा आता है, तो वो जो लर्निंग बोला था उसकी जगह क्या बोलेंगे? टीचिंग बोलेंगे, लर्निंग की जगह टू टीच नहीं बोल देंगे। ठीक है, आई एंजॉय टीचिंग इंग्लिश। तो अगर आप ऐसे ही वर्ब के बाद वाले हिस्सों पे ध्यान दे देंगे तो उसको हम लोग वर्ब पैटर्न भी बोल के सीख जा सकते हैं, जिससे ग्रामर साइड हो जाता है। इंग्लिश सीखने के दो तरीके हैं, एक ग्रामेटिकल टर्म्स में घुसना, और एक उनको साइड बाई साइड छोड़ करके और कुछ ऐसा अल्टरनेटिव निकालना कि बात समझ में आ जाए ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन बिना ग्रामर के टेंशन लिए हुए। जैसे अभी जो मैंने बताया नॉन फिनाइट, और ये फिर थोड़ी देर में आएगा पार्टिसिपल, थोड़ी देर में आएगा जेरन,
ये सब वर्ड्स कहीं ना कहीं बॉदर करते हैं लोगों को, क्योंकि रियल लाइफ के तो है नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं वर्ब पैटर्न, बोलूं क्या बोलूं, वर्ब पैटर्न, तो आपके दिमाग पे ज्यादा असर होगा कि अच्छा, माय फादर वांट्स टू बाय अ न्यू कार। मैंने कहा मेरे पापा घर बेचना चाहते हैं, तो वांट्स टू सेल हिज कार। तो आपको अगर नजर बनी रही वर्ब के बाद क्या लिखा हुआ है, तो आप उस पर ध्यान दे देंगे और वो फिक्स है, वही सही होता है। मेरे पिताजी घर बेचना चाहते थे, वांटेड टू, वो टू सेल ही है, उसमें कोई चेंज नहीं। जब चेंज नहीं तो टेंशन नहीं, चेंज होता तब ना टेंशन होता है, कैसे चेंज हो रहा है, चेंज होना ही नहीं है उसको। मेरी माँ वैष्णो देवी जाना चाहती है, माई मदर वॉन्ट्स टू विजिट। ठीक, ऐसा नहीं कि टू गो गलत होता, लेकिन तुम जो विजिट से जो कैच कर रहे हो फीलिंग, वो टू गो से कैच कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? वैष्णो देवी का कुछ रीजन है ना, इस वजह से मैंने कहा विजिट। ओके, तो ये कौन सा वर्ड कैच करता है, कौन सा फीलिंग, ये रहते रहते इंग्लिश में समझ में आएगा, इसलिए मैंने विजिट बोला टू गो की जगह। माई मम वांट्स टू विजिट। तो आप अगर पकड़ते चले इस तरह से, आई होप टू पास द एग्जाम, आई होप टू, आई होप टू पास द एग्जाम। और आप बोले मेरा मेरा मन कह रहा है कि जैसे हम उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम पास कर जाएंगे, आई होप टू पास द एग्जाम। तो आप किसी से बात कर रहे हैं और उसके बाद आप बोले कि ठीक है तो कल मिलेंगे, तो हाँ कल मिलेंगे, ठीक है। और बोले आई होप टू सी यू टुमारो, आई होप, तो टू सी क्यों बोलेंगे, क्योंकि आई होप टू पास था, टू पास। आप उससे मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो आप बोलेंगे आई होप टू। और फिर बाद में मिलने के बाद आप बोलेंगे कि एक दिन हम उम्मीद लगाते कि हम तुमसे शादी करें, तो कैसे बोलेंगे, आई होप। जैसे टू सी, टू पास, वैसे ही टू मैरी यू। बस आपका ध्यान खाली लगा रहना चाहिए पकड़ने के लिए कि क्या बोला जाता है। तो गौर से सुनना, गौर से पढ़ना, समझ में आया क्यों जरूरी है? टीचर का रोल छोटा करने के लिए। ठीक है, नहीं तो आप हर जगह टीचर पर डिपेंड करोगे अगर आप गौर से नहीं पढ़ोगे तो। और वो लिखवाते जाएंगे, लिखवाते जाएंगे, कॉपियां भर जाती हैं बच्चों की। ठीक है, कोचिंग क्लासेस करके इंग्लिश के, और उसके बाद वहां लिखा रहता है सब कुछ, यहाँ होता है नदारद, खाली जगह। कुछ फायदा हुआ आज के क्लास से? हाँ, उन लोगों का ज्यादा हुआ है जो सेंटेंस अरेंजमेंट दिमाग में रखे हुए हैं, लेकिन अब ये समझ सकते हैं कि अंग्रेज हिंदी नहीं जानते, तो ये सारी चीजें उनको गाइड करती है जो मैंने अभी बताई आपको बातें, वो जब इंग्लिश फॉर्म करते हैं तो। ठीक है, सबकॉन्शियस लेवल पे करती है उनके, क्योंकि वो तो बोलते बोलते आदत बना चुके हैं ना, लेकिन यही चीजें चल रही हैं। तो आप सेंटेंस से लिखोगे, मैं आपको एक दिखाता हूँ, वर्ब के बारे में बताया ना मैंने। चलिए ठीक है। तो वर्ब के साथ दो तीन चीजें होती हैं, वर्ब के बाद की कहानी ना थोड़ी लंबी चौड़ी है। वर्ब पैटर्न्स बोला ना मैंने, यानी कोई वर्ब ऐसे फॉलो करता है पैटर्न, कोई वैसे पैटर्न फॉलो करता है। तो आपको गौर करते रहना चाहिए वर्ब के बाद वाली बात। लेकिन वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट है ना। चलिए देखते हैं। आ, ये चीज पूछ करके मैं थोड़ा सा आपके हिम्मत को भी बढ़ाऊंगा और आपको अच्छा फील कराऊंगा कि आप लोग सही में आगे बढ़े। अगर सही जवाब दिए तो देखते हैं। मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। आपने कर्जदार सुना होगा ना, कर्जदार। तो मैं आपको एक वर्ड सिखाता हूँ, OWE, ओ मतलब कर्जदार होना। OWE, ओ मतलब कर्जदार होना। ठीक है, तो आप सब लोग को पता है कि विजय माल्या कर्जदार है कि भारत सरकार कर्जदार है? बिहार बिहार ओ विजय माल्या पैसा लिए हुए है ना, कर्जदार है ना, पैसा लिए हुए है। किसका लिए हुआ है? अच्छा, सरकार को हटा देते हैं, बैंक का लिए हुआ है, बैंक का पैसा लिए हुआ है। अमेरिकन बैंक का लिए हुआ है कि इंडियन बैंक का लिए हुआ है ना, वो कर्जदार है ना इंडियन बैंक का। कितना का? 9,500 करोड़ सुना था मैंने। अच्छा चलो, 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, 12,000 करोड़, बोलो कौन आ रहा है हमको वो केस करने की, काहे झूठ बोला मेरे पे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो जितना बोलना 15,000 करोड़ बोल दो, ठीक है। तो वो इतना कर्जदार है। ओ मतलब होता है कर्जदार होना। अब तुम सेंटेंस फॉर्म करोगे, तुम्हारे दिमाग का दही हो जाएगा। करो, अगर तुम हिंदी पे ध्यान दिए हो तो तुम्हारे दिमाग का दही हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन तुम जैसे इंग्लिश यहां सोचोगे, जो मैंने बताया अब तक, बस जो 60-70 मिनट्स 80 मिनट्स 90 मिनट्स मैंने बात करी आज, और तुम वही फॉलो करो फॉर्मूला जो मैंने बताया, और तुम सही जा रही थी रानी। बस। अच्छा, मैंने बताया ओ एक वर्ब है, ठीक है दोस्तों। तो ओ वर्ब के कितने फॉर्म्स होंगे? एक किसी वर्ब के इंग्लिश में 5 फॉर्म्स होते हैं, और वो कौन से टेंस में कैसे यूज होता है वो तुमको पता है, ठीक है। तो बताएंगे। अगर आपने बोला इज और ओ साथ में, तो ये कभी पॉसिबल है कि इज एमआर के साथ यानी बी वर्ब के साथ वी वन यूज किया जाए? ये कभी पॉसिबल है? पूछा तो बताइएगा, कभी आपने किया है कि इज एमआर के बाद वी वन बोला हो? अगर हाँ तो जल्दी बोलिए, नहीं तो फटाक से बोलिए नहीं सर ये कभी नहीं होता है। और इसकी आदत भी हटाइए। हिंदी आपकी फोर्स करवाती है आपको इज एमआर प्लस वी वन बोलने के लिए। इंग्लिश में ये एग्जिस्ट करता है ये पैटर्न। कभी आप बोल सकते हैं आई एम ईट, आई एम टीच, ही इज लर्न, ऐसा बोल सकते हैं? इम्पॉसिबल। आपको पता है क्या करना है। आई टीच, ही टीचेस, आई गो, ही गोज, यही है ना। तो अगर आपको रूल्स पता है इंग्लिश के, और इतना पता चल गया कि ओ क्या है, एक वर्ब है, तो चलिए भाई आपका सेंटेंस बन गया। बन गया ना, करेक्शन हो गया ना। हाँ, अगर हिंदी पे सोचते तो आपका दिमाग का दही हो जाता, आप कहां कहां क्या क्या करते। तो इंग्लिश इज वेरी इजी, लेकिन हिंदी के शब्दों से मत मिलाओ उसको। हिंदी इज डिफरेंट, इंग्लिश इज डिफरेंट। बन गया ना सेंटेंस। विजय माल्या ओज, वहां तक तो पहुंच गए, अब आगे बढ़ जाते हैं। विजय माल्या ओज इंडियन बैंक्स, आगे बोलो। क्या बोलना है? कितना कितना पैसा, कितना पैसा कर्ज दिए हुए है? बोल दो। विजय माल्या ओज इंडियन बैंक्स 11,000 करोड़, 11,000 करोड़ रुपीज, 11,000 करोड़ रुपीज, हो गया, बन गया। और हिंदी में कैसे बोलेंगे? विजय माल्या इंडियन बैंक का 11,000 करोड़ रुपए का कर्जदार है। अब जहां हिंदी का ये सारा शब्द सोचने लग जाते हैं हम लोग, काका करते रह जाते हैं हम लोग। आया ना। इंडियन बैंक के 11,500 रुपए कर्जा ले रखा है उसने, है ना। यही बोलना था ना हमें, कर्जदार है मतलब ये ले रखा है पैसे। इंग्लिश में हो गया आसानी से, क्योंकि मैंने आपको खाली ये बता दिया ओ क्या है, वर्ब है। और वर्ब है तो आपको वर्ब यूज करना आता है इंग्लिश में, बस वैसे यूज करो। तो जब भी आपको कुछ सिखाऊं तो हिंदी वर्ड ऑर्डर पे मत ज्यादा ध्यान दो, इंग्लिश पे ध्यान दो कि इंग्लिश में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और आज जो क्लास में बता दी मैंने, इस रिकॉर्डिंग को बचा के रख लेना, ठीक है, सेव करके रख लेना, गाइड करते रहेगा तुम्हें। हर 10-15 दिनों पे ये रिकॉर्डिंग देख लेना, दिमाग फ्रेश हो जाएगा फिर से इंग्लिश के रूल्स के बारे में। यही रूल्स तुम्हें गाइड करेंगे। 3 वर्ड्स के बारे में बात कर दी, नाउन्स के बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में, वर्ब्स के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है दोस्तों, कितना आसान था। इंग्लिश के रूल्स आर वेरी इजी इफ यू फॉलो इंग्लिश रूल्स। मैं और ऐसे उटपटांग वर्ड्स देता हूं, ठीक है। अगर तुम सुने होगे तो अच्छी बात है, थोड़ा डिले कर देना। अगर तुम सुन चुके हो ये और सेंटेंस पहले से जानते हो तो छोड़ देना। जो लोग पहले नहीं बनाए ये सेंटेंस, वो अपना दिमाग लगाएं इंग्लिश के हिसाब से। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। अभी तुम बोलना चाहोगे इंग्लिश में तो बहुत सारे सोचोगे, मैं तुम्हें एक चीज हेल्प देता हूं, ठीक है। कंसिस्ट मतलब होता है बना होना। क्या होता है? कंसिस्ट मतलब होता है बना होना, ठीक है। कंसिस्ट, ओके। अब मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, कंसिस्ट मतलब होता है बना होना, ये एक वर्ब है। अब आगे तुम लोग बोलो। तो तुम अभी जो नहीं कभी बोले होगे वो बोलते, वाटर कंसिस्ट हाइड्रोजन एंड, ये तुम्हारे दिमाग में चलता, जो कि तुम सही हो अपने लेवल पे। और जो पहले जानते थे वो तो बस सही बोल ही देंगे, इसमें एक छोटा सा काम करना होगा। लेकिन वाटर कंसिस्ट तक में कोई काम नहीं करना हो, तो रूल है, सही फॉलो किया तुमने। वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बस हल्का सा वहां पर ये जरूरत पड़ती है कंसिस्ट के मामले में। वाटर, अब यही बात को जो कि समझ में आ गया है, तो हम बोल सकते हैं आवर क्लास
consists of boys and girls both. Our class consists of grown up and young kids both. समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आपको खाली क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच समझना है। अगर एक भी सेंटेंस देख लिया ना एग्जाम्पल के तौर पे, तो अरेंजमेंट पे ध्यान दे सकते हो कि अच्छा ये ऐसे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसके बाद ये मामला हो रहा है, ऐसे ही बनाए रखना है। मैं एक जाते जाते एक और, में 1 मिनट बच रहा है। अच्छा, एक और सेंटेंस देना है तुम्हें जाते जाते। क्या था वो सेंटेंस जिसमें इतना ज्यादा उलझ गए थे वो लोग? भूल गया मैं यार, क्या था वो सेंटेंस। काफी उलझे थे लोग, इसलिए उलझे थे कि वो हिंदी से देखने की कोशिश कर रहे थे उसको। और जैसे भी इंग्लिश में वर्ड्स आएंगे ना अरेंजमेंट, तो तुम्हें खाली उनके फ्रेजेस पे ध्यान देना है कि ये नाउन वर्ब वाला ऐसे मामला है, ये एडजेक्टिव है, इसमें एडजेक्टिव और नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद ये नाउन है। तो ये ऐसे टुकड़ों में अगर आप देखना शुरू कर दिए तो वो फिक्स हो जाएंगे दिमाग में जाके, और तुम हमेशा उनको यूज करते रहोगे। देखते हैं अगर कुछ और एक मेरे दिमाग में चल रहा है पूछने के लिए, जो इंग्लिश की वजह से काम करे। अभी इस बच्चे को उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ इस सारे क्लास का, क्योंकि ये क्लास का फायदा आज हुआ है तुम्हें। अगर मैंने फर्स्ट डे ये सारी बातें की होती ना, okay, yeah, चलो सेंटेंस सुनाओ। लिविंग होम इज नॉट इजी। लिविंग होम इज नॉट इजी। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग कर सकते हो। लिविंग होम इज नॉट इजी, बोलो। स्पेलिंग है LEAVING, घर छोड़ना। ओके, लिविंग होम इज नॉट इजी, सब्जेक्ट वर प्रेडिकेट राइट, है ना। सब्जेक्ट यहां पर कैसे आया, नाउन है, कौन सा? हाँ, होम को या नहीं नाम सुनने, लीविंग, लिविंग होम साथ मिल करके एक आइडिया बना, घर छोड़ना इज नॉट, लिविंग होम इज नॉट इजी। बोलो, पत्नी को छोड़ना आसान नहीं होता, या गर्लफ्रेंड को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। लिविंग योर गर्लफ्रेंड इज नॉट इजी व्हेन योर लव इज ट्रू, व्हेन योर लव इज ट्रू। अब अगर आप बोले कि पत्नी को खुश करना आसान नहीं होता, तो लिविंग तो छोड़ना होता है, खुश करना का इंग्लिश होता है प्लीज। प्लीज मतलब खुश करना। हाँ बोलो। हाँ, प्लीजिंग योर वाइफ इज नॉट इजी। तो कल से जैसे चल रहा है चलता रहेगा, लेकिन ये जो जानकारी दी गई है ये रिकॉर्ड रहना चाहिए तुम्हारे पास। इसको फिर 10-15 दिन बाद रिवाइज कर लेना, ताकि फ्रेश हो जाए कि हाँ कैसे कैसे इंग्लिश में वर्ड होते हैं। अंग्रेजों को हिंदी नहीं पता, इसलिए वो हिंदी वर्ड ऑर्डर के बारे में सोच भी नहीं सकते कि उनको ऐसे करना है वैसे करना है। ओके, चलो कल मिलते हैं फिर। बाय बाय गाइस, टेक केयर।